So good morning. Today we shall study about the conformal mapping. This is our first lecture on conformal mapping, and our conformal mapping is divided in two lectures. So in this lecture we shall study about why we need conformal mapping, what is the conformal mapping, and we define some standard transformations which are basically special cases of the conformal mapping, such as magnification and rotation, rotation and translation, inversion and reflection. These three are the some standard transformation which is the part of the conformal mapping. And in the last we define relationship between the analytic function and conformal mapping. So first of all, first question arises why we need conformal mapping. So complex analytic functions at non-critical points. Basically, non-critical points means where your derivative of the function is not equals to 0. If derivative of the function is 0, then that point is known as the critical point. So basically, non-critical point means where derivative of the function is not equals to 0. So complex analytic function at non-critical points preserves angles and therefore define conformal mapping. We shall define what is the conformal mapping in the next slide. Some of the application of the conformal mappings are as follows. First one, a large number of problems arising in the fluid mechanics, electrostatics, heat conduction, and many other physical situations can be mathematically formulated in terms of the Laplace equation. And you know what is the Laplace equation? Del 2u upon del of x square plus del 2u upon del of y square equals to 0. It means if u is the function of two variable x and y, and if it satisfies this equation, L2u equals to 0, then that equation is known as the Laplace equation. And we know that harmonic functions satisfy this Laplace equation. So therefore, the solution of the Laplace equation is known as the harmonic functions. And we know that if your function fz is analytic, then real part u and v are the harmonic functions. Yes or no? If fz equals to u plus iota v is your analytic function, then we know that u and v are the harmonic functions, where v is the harmonic conjugate of u. We have already studied about the harmonic function in the previous lectures. The next one is the conformal mapping of harmonic function is also harmonic. So the equation pertaining to any field that can be represented by a potential function can be solved by using conformal mapping. इट मीन्स यदि हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन है जो किसी बेसिक जिसका डोमेन आपके पास में कुछ डिफाइन हो, सो बाय द एप्लीकेशन द कंफॉर्मल मैपिंग, यदि आपके पास सिंपलीफाइड डोमेन में यदि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्यूशन आप उसका कॉम्प्लिकेटेड डोमेन में भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कंफॉर्मल मैपिंग. And if the physical problem can be represented by a complex function, but the geometric structure is not easy to handle, then by an appropriate mapping it can be transferred to a problem which much more convenient geometry. It means यदि आपकी कोई प्रॉब्लम की जियोमेट्री कॉम्प्लिकेटेड है, उस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाइड जियोमेट्री के लिए सॉल्व कर सकते हैं और उसका हम एक्सपांशन कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्री के लिए भी निकाल सकते हैं. So that is the application of the conformal mapping. And solving Dirichlet problems is one of the major application. आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में यदि आप लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उसमें जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज नोन एज डिरिचलेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन भी आपको किसकी फॉर्म में मिलता है? एनालिटिक फंक्शंस की फॉर्म में मिलता है. एंड द लेटर ऑन we study that your analytic functions are the part of the complex conformal mapping basically. So first of all, before defining the conformal mapping, we define some standard definitions we use in conformal mapping. First one is the path. A path in the complex plane from a point A to a point B is a continuous function which is represented by gamma, whose domain is AP and whose range is in the complex plane C, such that the initial point of the path is A and the terminal point of the path is capital P, where A and B are the
initial and terminal point of the domain, right? So this can be represented graphically as such. Suppose this is our gamma t, which is our path of the function, which is defined over the closed interval AB. Suppose this point is small a and this point is small b, and this point is the value of the path at the point A, and this is the value of the path at the point B. So this is our capital B and this is our capital A. And suppose Z0 is an arbitrary point over this path, where Z0 means value of the path at the point T0, where T0 is any point between small a and small b, right? So this is our Z0, any point over the path gamma t, and suppose this is our slope of the tangent. This is our tangent at this point Z0, which is represented by gamma prime T0. So basically this is our tangent of the path at the point Z0. So this is our path of the complex function, right? Similarly, the smooth curve, a path gamma from AB to C is smooth if the functions xt and yt, as we know that our path gamma is a complex function which is represented by this relation xt plus iota yt. Now this path is smooth if the xt and yt has as many derivative as desired. It means कोई भी आपका फंक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बेसिकली, जो आप गामा t equals to xt plus iota yt, which is represented by a path. Now this path is smooth if it has derivative for xt and yt as many as derivative as we desired. It means first derivative भी present होना चाहिए, second derivative भी होना चाहिए, और third derivative भी होना चाहिए, और higher order derivative भी possible है. तो कोई भी आपका पाथ स्मूथ होगा यदि उसके जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के जो डेरिवेटिव्स आप निकाल रहे हैं वो पॉसिबल हो, डेरिवेटिव सारे के सारे, तो उस केस में आपका जो पाथ होगा दैट इज स्मूथ. सो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशंस है जो हमारे आगे काम आएगी. नेक्स्ट वन, द टर्म कर्व इज टिपिकली यूज्ड फॉर द स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ पाथ. इट मींस जनरली हम यूज करेंगे कर्व. इसका मतलब है कि हमारा जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ पाथ होगा. ठीक है. सो इफ गामा फ्रॉम ए बी टू सी इज ए स्मूथ कर्व at t0 is any point between the interval a b, then the tangent at the point t0 is given by x prime t0 plus iota times y prime t0, and this is our tangent vector to the path gamma at the point z0, where z0 is the value of the t0 over the path gamma. So z0 equals to gamma of t0. ठीक है. तो यहाँ पे जनरली हमारे पास कर्व और पाथ की डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, बिकॉज हमको जब कन्फॉर्मल मैपिंग बताएंगे तो हमारे पास में हम टर्म यूज करेंगे कि हमारा जो कर्व हो वो स्मूथ कर्व है या पीस वाइज स्मूथ कर्व है, तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. आप लोगों को यदि यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो डिफरेंस क्या है कि हमारे पास में जो रियल फंक्शंस हैं हमारे वो किसी इंटरवल पे डिफाइन होते हैं. इफ यू रिमेम्बर कि हमारे पास कोई फंक्शन है f, वहाँ पे आप x एक्सिस पे डिफाइन है y इक्वल्स टू fx मान लीजिए आप, यहाँ पे x क्या है, ओवर दी x एक्सिस है. इट मींस हमारे पास सारे के सारे डिस्क्रीट पॉइंट मिलेंगे. बट यहाँ पे हमारे पास जो कर्व हुई है, जो पाथ जो डिफाइन है वो ओवर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन गामा t के ऊपर डिफाइन होगा यहाँ पे. ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस है. रियल जो हमारे पास में फंक्शंस पढ़ते हैं वो किसी लाइन के ऊपर डिफाइन होंगे, जैसे y इक्वल्स टू fx, x की वैल्यू आप पुट करते हुए चलेंगे तो आपको y की वैल्यूज मिलती हुई चलेंगी. यहाँ पे हमारा फंक्शन fz क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन के अंदर डिफाइन होगा, और कॉम्प्लेक्स डोमेन में आपकी जो कर्व मिलेंगे वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेंगे गामा टी की फॉर्म में, वेयर गामा टी इज xt प्लस आयोटा yt. इट मींस उसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा. So this is the bigger difference between real function and the complex functions. Now next, between the angle between the two curves. जैसे कि आप लोगों ने रियल फंक्शंस के केस में किया होगा कि आपके पास में दो कर्व गिवन हैं y1 और y2. यदि वो किसी पॉइंट y0 पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके कर्व एंगल कैसे निकालते थे आप लोग, दोनों के ऊपर टेंजेंट ले लेते थे और दोनों के टेंजेंट का जो एंगल आएगा दैट इज अवर angle between the two curves. Yes or no?
Yes, sir. तो सेम यहाँ पे है गामा 1 एंड गामा बी टू स्मूथ कर्व्स intersecting at the point z0. The angle between the two curves at z0 is defined as the angle between the two tangent vectors at z0. सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पे फॉलो करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस जस्ट एक डिफरेंस है कि हमारे वहाँ पे जो फंक्शंस थे वो रियल वाले फंक्शंस थे, बट यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे जब भी दो पाथ के अंदर आप कर्व के जो एंगल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टेंजेंट वेक्टर्स एट द पॉइंट एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट z0। उन दोनों टेंजेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अवर एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। ज्योमेट्रिकली आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट पाथ गामा 1 एंड दिस इज अवर सेकंड पाथ गामा 2 एंड दीज टू पाथ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट z0। अब इस z0 पॉइंट के ऊपर हमारा गामा 1 के रेस्पेक्ट में जो टेंजेंट वेक्टर है दैट इज गिवन बाय गामा 1 प्राइम t0 and this at the point z0 the tangent vector at the curve gamma 2 is given by gamma prime 2 t0। अब दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट द पॉइंट z0। ठीक है, तो हमारे पास में दो कर्व गिवन है गामा 1 एंड गामा 2। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन एट z पॉइंट पे हो रहा है। इस z पॉइंट के उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन का जो एंगल है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टेंजेंट वेक्टर्स एट द पॉइंट z0 ओवर द कर्व गामा 1 एंड गामा 2। अब दोनों टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, गामा 1 प्राइम एंड गामा 2 प्राइम एट द पॉइंट t0। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अवर एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट द पॉइंट z0। क्लियर? नाउ वी डिफाइन द conformal mapping. A function is conformal if it preserves angle between the curves as well as preserving orientation. More precisely, a smooth complex valued function defined over domain D and whose range is in the set or connected set E is conformal at Z0 if whenever two curves intersect at Z0 with non-zero tangents, that f of gamma 1 and f of gamma 2 have non-zero tangents at f of z0 that intersect at the same angles as well as preserving orientation. It means हमारे पास में दो कर्व गिवन है गामा 1 एंड गामा 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है हमारे पास में सपोज दैट इज थीटा एंगल एट द पॉइंट z0। अब यदि हम इसका w इक्वल टू fz, हमारे पास में क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग है, w इक्वल टू fz, जहाँ पे z की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, गामा 1 एंड गामा 2 के ऊपर है। तो हमारे पास में गामा 1 पे आप जो भी वैल्यूज लेंगे जो z की वैल्यूज होंगी। अब यदि इस गामा 1 की आप इमेज निकालते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू fz, तो गामा 1 की आपको जो इमेज मिलेगी दैट इज गिवन बाय दिस कर्व f ऑफ गामा 1 t। तो आपके पास में जो गामा 1 कर्व है उसकी इमेज क्या होगी, w इक्वल टू fz के अंडर f ऑफ गामा 1 t, ये आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, that is the image of the curve gamma 1t। Similarly आपके पास में gamma 2 कर्व है, इसकी इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू fz क्या है, f ऑफ gamma 2t। ये हमारे पास में इमेज ऑफ द कर्व गामा 1 एंड गामा 2 आपको मिल रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि z0 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट इन दी z प्लेन ऑफ द कर्व गामा 1 एंड गामा 2। दिस इज अवर z प्लेन। अब आपने w इक्वल टू fz ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया तो हमारे पास में ये जो प्लेन बनेगा दैट इज अवर w प्लेन। ठीक है, यहाँ पे w इक्वल टू क्या देगा, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में होगी, और यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। इस z प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं दैट इज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होंगे। बट यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया w इक्वल टू f ऑफ z, तो आपके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो w प्लेन में किस फॉर्म में मिलेंगे, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में मिलेंगे, वेयर u इज द रियल पार्ट एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास में दो कर्व है गामा 1 एंड गामा 2 जो z0 पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल सपोज थीटा है। गामा 1 हमारे पास लोअर कर्व है एंड गामा 2 हमारे पास क्या है, अपर कर्व है एट द पॉइंट z0। यदि हम इन दोनों कर्व की इमेज निकालते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू fz, तो हमारे पास में इनकी कर्व की इमेज इस फॉर्म में मिलेगी f ऑफ गामा 1 एंड f ऑफ गामा 2।
and the intersection point of these two curves is W naught, where W naught is the value of the function at the point Z naught. W naught equals to function at point Z naught. It means यहाँ पे जो intersection point Z naught है उसकी जो वैल्यू होगी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन W equals to F, that is given by W naught. तो ये दोनों कर्व W naught पे इंटरसेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो f of gamma 1 है that is again a lower curve, and f of gamma 2 is again a upper curve. बट हमारे पास में स्लाइटली रोटेट हो गया है यहाँ पे. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल थीटा है. इसका रोटेशन यदि होता है W equals to Fz के अंदर, रोटेशन के बाद में भी हमारे पास f of gamma 1 क्या है, लोअर कर्व है, एंड f of gamma 2 is again a अपर कर्व है. और इन दोनों कर्व के बीच में जो एंगल होगा एट द पॉइंट W naught वो सेम होगा जो यहाँ पे Z naught के ऊपर है. तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मींस ओरिएंटेशन ऑफ द कर्व गामा 1 यदि आपका लोअर कर्व है, गामा 2 आपका अपर कर्व है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया W equals to Fz, उसके बाद में भी आपका जो गामा 1 की जो इमेज आ रही है दैट इज f of gamma 1 वो हमारे पास लोअर कर्व होना चाहिए, एंड image of gamma 2 is f of gamma 2 that is our upper curve, and the intersection at the point Z naught एंगल जो मिलेगा आपको that is again a theta. तो उस केस में हमारे पास इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग. इट मींस हमारे पास कन्फॉर्मल मैपिंग का मतलब है इट प्रिजर्व्स एंगल बिटवीन द कर्व्स एज वेल एज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं. तो यदि हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है, सपोज दैट इज अवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गामा 1 से गामा 2 की तरफ जा रहे हैं. तो यदि हमारे पास इसकी जो इमेज मिल रही है तो हमारे पास में अगेन यहाँ पे f of गामा 1 से f of गामा 2 की तरफ हम जा रहे हैं. तो ओरिएंटेशन हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे. तो ओरिएंटेशन भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, और जो उसका जो कर्व का जो एंगल है वो भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए. तो इस टाइप की जो मैपिंग है उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग. इसमें कुछ डाउट है बेटा आप लोगों को? नो सर. Okay. There are some important remarks about the conformal mapping. A conformal map rotates and scales all tangent vectors at Z naught by the same amount. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये जो एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल आपका थीटा तो रहेगा बट वो क्या है, सिंपली रोटेट हो रहा है आपका ग्राफ. यहाँ पे ग्राफ आपका ऐसे है यहाँ पे, बट यहाँ पे ग्राफ आपका थोड़ा रोटेट होके इस तरह से बन रहा है. इट मींस आपका जो रोटेशन है वो सेम अमाउंट होगा. गामा 1 के लिए जितना रोटेशन है सेम अमाउंट आपके गामा 2 के लिए भी होगा. इट मींस रोटेशन दोनों कर्व के लिए सेम होगा. ऐसा नहीं कि गामा 1 के लिए कुछ अमाउंट ज्यादा और गामा 2 के लिए कुछ अमाउंट कम हो. ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपका सेम रहेगा. सेम केस है आपका स्केलिंग. सेकंड पॉइंट है आपका स्केल्स ऑफ द टेंजेंट वेक्टर. इट मींस हमारे पास में जो कर्व की जो लेंथ है यहाँ पे ये जो स्मॉल है, जितने आफ्टर यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन जितना अमाउंट से ये स्केल इसका स्केलिंग बढ़ेगा, इधर ये कॉन्ट्रैक्ट करे या एक्सपांशन हो इस कर्व का गामा 1 का इमेज की फॉर्म में, तो दोनों का अमाउंट हमारे पास सेम रहेगा. यदि ये +1 से एक्सपांड हो रहा है तो गामा 2 भी +1 से ही एक्सपांड होगा, और यदि -1 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो गामा 2 भी -1 से ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इट मींस आपका जो स्केलिंग है वो भी सेम अमाउंट की होगी, और जो रोटेशन है वो भी सेम अमाउंट का होगा इसमें. सेकेंड पॉइंट इज कन्फॉर्मेलिटी इज ए लोकल फिनोमिना. लोकल इन द सेंस कि हमारे पास में ये Z naught के ऊपर यहाँ पे आपके पास में कोई पॉइंट है, इसमें जो एंगल है, सपोज दूसरा पॉइंट आपको Z1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वहां पे यदि एंगल डिफरेंट है, सपोज θ1 है, तो यहाँ हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिलेगी वो जो उसका एंगल भी θ1 होगा. इट मींस जो कन्फॉर्मेलिटी है हमारे पास में वो क्या है, लोकल फिनोमिना है. इट मींस डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट आपके जो एंगल्स हो सकते हैं और स्केलिंग भी हो सकती है, बट जो मेन कंडीशन है कि आपका जो एंगल प्रिजर्व होना चाहिए और ओरिएंटेशन भी आपका प्रिजर्व होना चाहिए. वो दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, बट जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे θ0 Z0 पे θ0 हो, किसी अदर पॉइंट Z0 पे Z1 पे आपका θ1 हो सकता है, Z2 पे आपका θ2 हो सकता है. बट जो मेन कंडीशंस क्या है कि एंगल प्रिजर्व होना चाहिए और उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए. वो दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई होगी.
So therefore conformality is a local phenomenon. A mapping is isogonal if magnitude of angle is preserved but not the orientation. यहाँ पे हम कन्फॉर्मल में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड और जो ओरिएंटेशन है दोनों के दोनों क्या प्रिजर्व रहते हैं. बट यदि हमारे पास में सपोज मैग्नीट्यूड तो आपका प्रिजर्व रहता है बट उसका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब आपने ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, बट यदि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू FZ आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहता है पर ओरिएंटेशन क्या चेंज हो जाता है, क्लॉकवाइज बन जाता है. सपोज इसी की हम बात करें, गामा 1 गामा 2 आपके पास में ये कर्व थे, आपने यदि W इक्वल्स टू FZ ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो सपोज आपके जो दिस कर्व इज f ऑफ गामा 2 एंड दिस कर्व इज f ऑफ गामा 1. ठीक है, अब आपके पास में इसकी एंगल तो आपका सेम मिल रहा है बट इसका क्या ओरिएंटेशन चेंज हो गया. यहाँ से गामा 1 से गामा 2 के बीच में एंगल थीटा था, बट यहाँ से f ऑफ गामा 1 से f ऑफ गामा 2 के बीच में एंगल आपका क्या है, नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. इट मींस अमाउंट तो सेम है बट एंगल यहाँ से यहाँ जाएगा, इट मींस माइनस थीटा हो जाएगा वो. ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल f ऑफ z इक्वल्स टू z बार. यदि आप लोगों को पता है z का जो आर्गुमेंट कितना होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होगा, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. ठीक है, यस सर. यहाँ पे जो थीटा होगा दैट इज tan इनवर्स y अपॉन x होगा. बट यदि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करे हैं w इक्वल्स टू fz इक्वल्स टू z बार, यहाँ पे z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y होगा. इसमें जो एंगल आएगा थीटा है वो कितना बन जाएगा आपका, माइनस टेन इनवर्स y बाय x. माइनस हो जाएगा. इट मींस आपके पास अमाउंट तो आपका सेम है बट क्या उसका क्या जस्ट ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x. अमाउंट यदि आप निकालेंगे तो थीटा तो आपका सेम मिलेगा, बस उसका पहले क्लॉकवाइज है तो अभी क्या, सॉरी पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारे पास अब क्या मिल रही है आपको, क्लॉकवाइज मिल रही है. तो ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया उसका, बट उसका क्या है, अमाउंट तो सेम है. सो उस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो आपका प्रिजर्व रहता है बट ओरिएंटेशन आपका प्रिजर्व नहीं रह पाता, उस टाइप की जो मैपिंग है दैट इज नोन एज द आइसोकोनल. क्लियर? Yes, sir. Now let us see some standard transformation. First one is magnification and rotation. Such type of transformation W equals to CZ, where C being a complex constant, जहाँ पे C क्या पर से है, complex number है. Here we consider the polar form. ठीक है, W equals to CZ आपके पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन कहेंगे. यदि हम इसको पोलर फॉर्म में देखें तो z इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, r e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं. x z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y आपके पास में है, उसकी पोलर फॉर्म आपके पास में क्या बनेगी, r e की पावर आयोटा थीटा बनेगी. बिकॉज x इक्वल्स टू r cos थीटा पुट करेंगे, y इक्वल्स टू r sin थीटा पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास में मिलेगा z इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा. दिस इज आवर पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. सिमिलरली सपोज W, जो हमारे पास में W प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, उसको हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है, r टाइम्स e की पावर आयोटा फाई, इट मींस r cos फाई प्लस आयोटा sin फाई. एंड c हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू है a टाइम्स e की पावर आयोटा अल्फा, इट मींस a cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा. देन बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू CZ, ये हमारे पास में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल्स टू CZ. अब यहाँ पे आप W, C और Z की जो पोलर फॉर्म्स है वो पुट कर दीजिए आप. सो W की पोलर फॉर्म क्या है, R टाइम्स E की पावर आयोटा फाई. C की पोलर फॉर्म क्या है, A टाइम्स E की पावर आयोटा अल्फा. Z की पोलर फॉर्म है R टाइम्स E की पावर आयोटा थीटा. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट R E की पावर आयोटा फाई इक्वल्स टू A टाइम्स R टाइम्स E की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा. अब आपके पास में ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका यदि हम कंपेयर करते हैं देन वी गेट कैपिटल R इक्वल्स टू AR एंड फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा. सो इट मींस हमारे पास में कोई पॉइंट है. नाउ दिस रिलेशन कैपिटल R इक्वल्स टू AR एंड फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट द पॉइंट P which is denoted by R and theta in the Z plane get mapped onto the point P prime with the coordinates AR and theta plus alpha. ठीक है, ये हमारे पास में R थीटा पॉइंट था. आपने यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया W इक्वल्स टू CZ, तो ये जो R थीटा पॉइंट है
वो कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारे पास में, ए आर थीटा प्लस एल्फा। इट मीन्स इसका आर का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे ए क्या है, एक कोफिशिएंट है, इस ए की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका वो एक्सपांशन हो जाएगा, और यदि नेगेटिव है उस केस में आपका, यदि मोर देन 1 है, सपोज हम ग्रेटर देन 1 है, उस केस में तो इसका एक्सपांशन हो जाएगा, और यदि लेस देन 1 है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तुम्हारे पास आर है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, ए आर से रिप्लेस हो रहा है। सो दिस इज अवर मैग्निफिकेशन। और जो हमारे पास एंगल है थीटा, वो थीटा किस में बन रहा है, थीटा प्लस एल्फा। इट मींस हमारे पास इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है विद द एंगल एल्फा। जेड प्लेन के अंदर आपका पॉइंट क्या है, आर थीटा है। और यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया W इक्वल टू सी जेड, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है आर थीटा जो पॉइंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए आर कोमा थीटा प्लस एल्फा। इट मींस इसका मैग्निफिकेशन हो रहा है विद द अमाउंट ए, और इसका रोटेशन होता है विद द एंगल एल्फा। ठीक है, एनी डाउट? देखिए आर थीटा पॉइंट है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये जेड प्लेन के अंदर पॉइंट है आर थीटा। यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया W इक्वल टू सी जेड, तो आपका W इक्वल टू सी जेड के बाद में जो आर थीटा की इमेज क्या मिल रही है आपको, ए आर कोमा थीटा प्लस एल्फा। इट मींस आर का मैग्निफिकेशन हो रहा है ए आर ए टाइम्स, और थीटा का जो रोटेशन हो रहा है, जो आपका एंगल थीटा था वो अब एंगल क्या बन रहा है, थीटा प्लस एल्फा हो रहा है। इट मींस हमारे पास उसका रोटेशन भी हो रहा है, पॉइंट जो वेक्टर है। तो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन एंड रोटेशंस। ठीक है, हमारे पास उसकी जो वेक्टर की जो लेंथ है वो पहले आर थी, अब वो लेंथ कितनी बन रही है, ए आर बन रही है। उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल था वो थीटा था, अब उसका एंगल जो यू एक्सिस के साथ में बनेगा W प्लेन के अंदर, दैट इज थीटा प्लस एल्फा। सो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट नोन एज मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। So this transformation consists of rotation through an angle alpha equals to amplitude of c of the z plane and uniform magnification of the length by a vector a, which is mod of c. Thus, a figure in the z plane is transformed into a geometrically similar figure in the w plane. It means आपकी जो geometry वो same रहेगी. Circle get transform into the circle. And now from here dw upon dz, यदि यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dw upon d of z, then you get c which is not equals to 0. Therefore the transformation is conformal for all z. इस कंडीशन को हम लेटर स्टडी करेंगे, why we said that this transformation is conformal. For example t equals to az, हमारे पास में ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। Now this transformation is a magnification and rotation. तो जो हमारे पास में ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में है, W इक्वल टू सी जेड की फॉर्म में है। नाउ दिस इज अवर मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। नाउ इफ A इक्वल टू सिंपली R इज ए रियल, A हमारे पास में क्या है, एक सिंपल रियल नंबर है। A सपोज A इक्वल टू 1 मान लीजिए आप, देन दिस स्केल द प्लेन Z, हमारे पास में एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट, Z प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, A इक्वल टू R कोई रियल नंबर है, सपोज A बराबर 2 मान लीजिए, तुम्हारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में Z किससे कन्वर्ट हो जाएगा, 2Z की फॉर्म में बन जाएगा। यदि A बराबर 3 लेते हैं तो 3Z बन जाएगा, Z इक्वल टू A इक्वल टू 4 लेते तो 4Z बन जाएगा। इट मींस हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है प्लेन का, स्केल द प्लेन्स। इट मींस हमारे पास में जो Z प्लेन है वो हमारे पास में 2Z बन रहा है, 3Z बन रहा है, 4Z बन रहा है, जस्ट स्केलिंग हो रही है उसमें। यदि हमारे पास में A हमारे पास क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, बट यदि हमारे पास में A की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में आती है, इट मींस हमारे पास में एक A इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, मींस A इज आवर पॉइंट ओवर द यूनिट सर्किल। A इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा हमारे पास किसकी इक्वेशन होगी, ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन होगी। मोड ऑफ z इक्वल टू 1 यदि आप लोगों को पता है, मोड ऑफ z इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट दी, हेलो, मोड ऑफ z इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। Mod of z equals to 1 represent a circle with center 0 and radius 1.
कुछ याद है या भूल गए? Okay, so here a equals to e raised power iota theta. It means our a point is lies over the circle with center 0 and radius 1. Now this rotates the plane. Simply यदि हमारे पास a की जगह e की पावर आइटा थीटा है, तो ये हमारे पास यदि हम इससे कंपेयर करें तो r की वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे पास में? a की वैल्यू यदि हमारे पास में पुट करें e की पावर आइटा थीटा, तो r में कोई चेंज नहीं होगा, r आपका सेम रहेगा, बिकॉज r ये हमारे पास में c बराबर क्या है? e की पावर आइटा थीटा है, तो हमारे पास में r में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस आप स्केलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, बट थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो थीटा पॉइंट है, वो थीटा प्लस a की फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर आइटा थीटा पॉइंट है, तो हमारे पास में बन जाएगा इट रोटेट्स द प्लेन। बट यदि a बराबर r e की पावर आइटा थीटा है, तो इट डज बोथ एट वंस। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास में z प्लेन के अंदर कोई डोमेन है, ये किसकी फॉर्म में है? स्क्वायर की शेप में है, जिसके और वर्टिसेस क्या हैं? 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। ये आपके पास में स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब यदि आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग दिस az, इसकी यदि आप इसकी इमेज निकालते हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो आपकी जो इमेज मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे a बराबर क्या है? r टाइम्स e की पावर आइटा थीटा। इट मींस हमारे पास में जो एंगल दैट इज दिस एंगल, वो थीटा एंगल से रोटेट हो, हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्म ये जो इमेज है स्क्वायर की, वो किस एंगल से रोटेट हो जाएगी? थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। सो सपोज दिस एंगल इज अवर थीटा एंगल। हमारे पास में जो यहाँ पे जो वर्टेक्स है 0,0, इसको आप थीटा एंगल से रोटेट कर दीजिए आप, तो हमारे पास इमेज इस फॉर्म में बनेगी। और इसकी आपकी स्केलिंग भी हो रही है विद द अमाउंट स्मॉल r। तो हमारे पास में जो यहाँ पे जो लेंथ 1 है, ये r टाइम्स बन जाएगी, बिकॉज यहाँ हमारे पास में जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी बन रही है? r टाइम्स बन रही है। तो ये हमारे पास जो दैट इज अवर r स्केलिंग हो रही है, सारी एजेस की आपकी स्केलिंग सेम होगी। तो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। इट मींस आपके जो स्क्वायर है यहाँ पे डोमेन के अंदर z के अंदर, आपने यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन की यूज किया w इक्वल टू az वेयर a इक्वल टू r टाइम्स e की पावर आइटा थीटा, तो इससे हमारे पास में जो ये जो ज्योमेट्री है w z प्लेन के अंदर, वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी और r अमाउंट से स्केल और मैग्निफिकेशन हो जाएगा उसका। इट मींस हमारे पास में जो एज 1 है, तो ये 1 की बजाय क्या बन जाएगी? r बन जाएगी ये। सो दिस लेंथ इज अवर r, दिस इज अवर r, दिस इज अवर r एंड दिस इज अवर r, एंड दिस एंगल इज थीटा एंगल। बेटा इसमें कुछ कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। नो सर। इट मीन हमारे पास में जो ज्योमेट्री है वो w इक्वल टू az के अंदर क्या है हमारे पास में? ये स्क्वायर है, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया w इक्वल टू az, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? r टाइम्स e की पावर आइटा थीटा, एंड वी नो दैट w इक्वल टू az इज अवर रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो इसका रोटेशन किस एंगल से होगा? थीटा एंगल से हो जाएगा। जो हमारे पास में इस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, उसका जो स्केलिंग फैक्टर है उससे तो इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और उसका जो एंगल है उससे उसका रोटेशन हो जाएगा। तो स्केलिंग हो जाएगी इसकी स्मॉल r हो जाएगी, और इसकी रोटेशन कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। तो हमारे पास जो स्क्वायर है इसका रोटेशन है थीटा और स्केलिंग है प्लस r। ठीक है, सो दिस इज अवर एग्जांपल ऑफ व्हिच इज rotation and magnification. Next one is magnification, rotation and translation. Such type of transformations w equals to az plus b. यदि हम यहाँ पे b को रिमूव कर देते हैं, then this transformation converts into the magnification and rotation. बट यदि हम यहाँ पे plus b ऐड कर देंगे, so this shows the translation of the transformation. So where b is a complex constant, so adding the b terms introduce the ट्रांसलेशन टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। इट मीन्स हमारे पास में ये जो एग्जाम्पल है w इक्वल टू az, आपने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? प्लस b ऐड कर दिया। इट मीन्स आपकी जो w इक्वल टू az है यहाँ पे, इसकी जो इमेज है स्क्वायर की, ये आपकी इमेज तो यही बनेगी, बट यदि हमने प्लस b हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इस प्लस b की वजह से ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, सो आपकी जो इमेज मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। सपोज b की वैल्यू कितनी है? 1 + 1/2 आयोटा।
यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 1 है और सपोज y सॉरी u इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1/2 है। तो आपकी जो इमेज है दोनों की इमेज तो सेम है, बट आपने जो इस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्लस बी किया है, उस प्लस बी की वजह से क्या हो रहा है, उस इमेज का ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, जो बी होगा सपोज दैट इज बी इज अवर 1 + 1/2 आयोटा, तो इसका जो ट्रांसलेशन बन रहा है वो यहाँ पे ये बन जाएगा। इट मींस आपकी इमेज तो सेम है, बस उसका ट्रांसलेशन हो रहा है विद द अमाउंट प्लस बी। ठीक है, Yes, sir. सपोज आप ट्राई कीजिए इसको, w इक्वल टू a की वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए सपोज 2e की पावर आइटा थीटा। नोट कीजिए आप लोग इसको एक बार, लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू az प्लस b वेयर a इक्वल टू 2e की पावर आइटा थीटा एंड b इक्वल टू 1 + 2 आइटा मान लीजिए आप। और आपके पास में जो डोमेन z के अंदर गिवन है, सपोज सिंपली आपका स्क्वायर गिवन है विद एजेस वर्टिसेस 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप इसकी जो इमेज बनेगी वो निकालिए बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 2z प्लस 1 + 2 आयोटा। किस टाइप की ज्योमेट्री मिल रही है आपको? सर 3 + 4 आयोटा की मिल रही है और थीटा एंगल से रोटेट हुआ है। हाँ, थीटा एंगल से आपका थीटा एंगल से रोटेट मींस आपके रोटेशन आपका ज्योमेट्री इसी टाइप की होगी, बस उसका स्केलिंग कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। इट मींस आपका जो स्क्वायर है यहाँ पे उसकी एजेस कितनी हो जाएगी, पहले 1 1 थी एज, अब 2 2 हो जाएगी। तो जो इस एज की जो लेंथ है यहाँ पे 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी और इसकी भी 2 हो जाएगी। और जो रोटेशन था वो थीटा हो जाएगा। इट मींस ये हमारा रोटेशन जो है थीटा की फॉर्म में है, बट उसका जो ट्रांसलेशन है वो किस पॉइंट पे हो जाएगा? सर 3,4 पे। 3,4 पे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म प्लस बी। यदि हम प्लस बी रिमूव कर देंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगा? सिंपली मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, और प्लस बी की वजह से इसमें क्या रहा है? ट्रांसलेशन भी हो जाएगा उसका। ठीक है, एंड नाउ डेरिवेटिव dw upon dz equals to a which is not equals to 0, therefore w equals to az plus b is a conformal thing for all z। ठीक है, ये कंडीशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लास्ट में। नाउ नेक्स्ट वन इज द इन्वर्सन एंड रिफ्लेक्शन। नाउ सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन w equals to 1 upon z is known as inversion and reflection। इट मींस अभी तक हमारे पास में जो पहले कंडीशन क्या थी w equals to cz, वो हमारे पास में क्या थी? रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी w equals to az plus b, इट मींस रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। यदि आपके पास में एक इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है w equals to 1 upon z की फॉर्म में, सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नोन एज इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शंस। इन पोलर फॉर्म, इसको यदि हम पोलर फॉर्म में डिफाइन करें तो सपोज z इक्वल्स टू r e की पावर आइटा थीटा, w इक्वल्स टू कैपिटल R e रेज़ पावर आइटा फाई, देन द इन्वर्जन w इक्वल्स टू 1 अपॉन z इज r टाइम्स e की पावर आइटा फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन r e की पावर आइटा थीटा। इट मींस e रेज़ पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन r, so therefore it gives capital R equals to 1 upon r in phi equals to minus theta। ठीक है, इट मींस आपकी जो जियोमेट्री है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि w इक्वल्स टू 1 अपॉन z यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, आपकी r की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी कैपिटल R उतना ही कम होता जाएगा। सपोज हम सर्किल की बात करें, टेक द सर्किल ऑफ सेंटर एट 0 ऑफ रेडियस 2। तो रेडियस का एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है? 0 मिल रहा है आपका ना। तो बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 1 अपॉन z आपको एक नया सर्किल मिलेगा, बस इसमें ओरिएंटेशन आपका चेंज हो रहा है ना।
यहाँ पे आयोटा फाई की जगह क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा थीटा है। हमारा जो सर्किल है सपोज मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है, जिसका ओरिएंटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दैट इज अवर पॉजिटिव ओरिएंटेशन। यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया W इक्वल टू 1/z, इससे जो आपको एक नया सर्किल मिलेगा उसकी रेडियस कितनी बनेगी, 1/2 बनेगी उसकी रेडियस, और उसका जो ओरिएंटेशन हो जो वो ओरिएंटेशन क्या बनेगा, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो सर्किल है r e की पावर आइटा थीटा, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है, उसमें जो सर्किल मिलेगा आपको उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/r हो जाएगी, और उसका जो एंगल है फाई इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 जो हमारे पास सर्किल है उसका इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो इमेज बनेगी दैट इज अगेन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1/2 विद ओरिएंटेशन पॉजिटिव क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। माइनस थीटा है इट मींस क्लॉकवाइज हो जाएगा, प्लस थीटा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। Hence the unit circle mode of z equals to r equals to 1 is mapped onto the unit circle mode of w equals to r equals to 1, and which is given by w equals to e raised power minus iota theta. कोई डाउट है इसमें? यूनिट सर्किल की जो इमेज बनेगी वो अगेन आपकी एक यूनिट सर्किल ही बनेगा बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट चेंज आपके पास में क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन आपका चेंज हो जाएगा। जो आपका यूनिट सर्किल है यहाँ पे r इक्वल टू 1 जो जेड प्लेन के अंदर है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस थीटा की फॉर्म में। एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस मानते हैं और क्लॉकवाइज को हम माइनस मानते हैं। यहाँ पे माइनस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ओरिएंटेशन वो क्या है, क्लॉकवाइज हो गया उसका ना, पहले एंटी क्लॉकवाइज था। इट मींस आपके एंगल निकाल लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल निकालते हैं उसको हम मानते हैं प्लस, और उसका यदि ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो इट मींस आपको मिलेगा तो सर्किल यूनिट सर्किल ही, बट उसका जो ओरिएंटेशन है वो माइनस हो जाएगा। ये तो केस हो गया जब आपके पास में जो डोमेन क्या गिवन है, सर्किल गिवन है। बट यदि हम फॉर ए जनरल जेड प्लेन की हम बात करें, सपोज अपर जेड प्लेन की हम बात करें, अपर एक्स वाई प्लेन की हम बात करें, यदि आप इसका अपर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। यदि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं w इक्वल टू 1/z, इससे जो आपको इमेज मिलेगी w इक्वल टू 1/z, वो कौन से प्लेन में मिलेगी आपको, लोअर हाफ में मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और उस z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की इमेज आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हुए निकालते हैं, तो इसकी इमेज आपको कौन सी क्वाड्रेंट में मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। ये सुनो, Yes, sir. बिकॉज यदि आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये सुनो, यस तो इट मींस हमारे पास जो पॉइंट है वो लोअर हाफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपके पास में पॉइंट x माइनस आयोटा वाई ना। सो इस टाइप की यदि जनरल z की बात करें तो w इक्वल टू 1/z कैन बी फाउंड ज्योमेट्रिकली बाय मेकिंग w इक्वल टू 1/r on the segment from 0 to z, and this shows the reflection of the z plane about the real axis. Now see this example, dz equals to 1/z। तो हमारे पास में ये सर्किल है, हम ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो ये जो एरो के निशान है that shows the orientation of the curve। तो इस टाइप का जो ओरिएंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओरिएंटेशन। और हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्लॉकवाइज है इस टाइप के, और यहाँ पे जो एरो आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन का मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जेड प्लेन के अंदर जो हमारे पास में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। तो सपोज हमारे पास में ये ट्रांसफॉर्मेशन है टी जेड इक्वल टू 1/z, और ये हमारे पास में कोई सर्किल है जो हमारे पास में जो यहाँ पे जो रेड वाला जो सर्किल है दैट इज अवर यूनिट सर्किल। इसके बाहर हमारे पास में कोई दूसरा सर्किल हमने लिया, सपोज दैट इज अगेन ए सर्किल विद रेडियस 2 है। यदि हम इसकी इमेज निकालते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन 1/z, तो इसकी इमेज हमको किसके अंदर मिलेगी, इस जो रेड सर्किल है इसके अंदर मिलेगी,
which is given by this circle with negative orientation। तो जी हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, बट यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दी है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन जाएगी यहाँ पे, बिकॉज W इक्वल टू 1/z है। सिंपली क्या करता है, उसका रेडियस उसकी 1/r टाइम्स हो जाएगी और उसका जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे प्लस थीटा ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो यदि ओरिजिन से आप इसका एंगल निकालते हैं, दैट एंगल इज प्लस थीटा मान लीजिए सपोज। अब इसी पॉइंट की हम यदि इमेज निकालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में जो बाउंड्री पे रहेगा, बट उसकी जो इमेज मिलेगी दैट इज माइनस थीटा टाइम्स हो जाएगा उस ओरिएंटेशन। इट मीन्स आपके यूनिट सर्किल के बाद जो भी सर्किल बनेगा उसकी इमेज आपको किसके अंदर मिलेगी, यूनिट सर्किल के अंदर मिलेगी, और जो यूनिट सर्किल के अंदर जो भी आपका सर्किल मिल रहा है उसकी इमेज किस में मिलेगी, इस यूनिट सर्किल के बाहर मिलेगी। इट मीन्स आपने यदि हमारे पास में ये यूनिट सर्किल के अंदर कोई सर्किल है विद पॉजिटिव ओरिएंटेशन, इसकी इमेज W इक्वल टू 1/z के केस में कैसी मिलेगी, दिस बिगर सर्किल विद नेगेटिव ओरिएंटेशन। इसका ओरिएंटेशन आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द और इमेज ऑफ द ओरिजिन बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंफिनिटी, एंड इमेज ऑफ द इंफिनिटी इज 0। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो जो आप इस टाइप की जो इमेज है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं इन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट वन इज द एनालिटिक फंक्शन एंड कन्फॉर्मेबिलिटी। इट मींस हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है W इक्वल टू fz मान लीजिए, तो हम कैसे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कन्फॉर्मेबल में डिफाइन करता है या नहीं करता है, तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। अभी तक हमारे पास में कौन सी चल रही थी, सारी की सारी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन चल रही थी। नाउ मैथमेटिकल डेफिनेशन कम्स इनटू द पिक्चर। If f is analytic on the region A and f prime z not equals to 0, then f is conformal at z naught. It means हमारे पास में f z कोई फंक्शन गिवन है जो क्या है, एनालिटिक है। आपने यदि उसका डेरिवेटिव निकाला किसी पॉइंट z नॉट के ऊपर, यदि डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इट मींस योर फंक्शन f is conformal at the point z नॉट। जिस पॉइंट पे 0 बन जाएगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे सिंगुलर पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन आपके पास में fz गिवन है, उसकी चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शन fz है वो कन्फर्मल में डिफाइन करता है या नहीं करता। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेरिवेटिव निकालना है सर। डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो भी z की वैल्यूज मिलेगी, उनके अलावा जो भी सारे पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स में हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कन्फर्मल मैपिंग डिफाइन करेगा, और जहाँ पे 0 बन रही है उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आपके पास में fz है वो एनालिटिक होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। 0 के बराबर पुट करने के बाद में जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को छोड़ के सारे पॉइंट्स में हमारा फंक्शन क्या डिफाइन करेगा, कन्फर्मल मैपिंग डिफाइन करेगा, और जहाँ पे हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बन रही है उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। Furthermore, the map f multiplies tangent vector at z naught by f prime z naught. That is, it means हमारे पास में ये क्या है, tangent vector of the curve f of gamma t at the point w naught, and which is given by f prime z naught times gamma prime t naught. For example, this one. Suppose c equals to a e की power eta phi, then this map fz equals to cz. आपको पता है किस टाइप की मैपिंग है, fz equals to cz। अभी पढ़ा था ना आप लोगों ने, fz equals to cz, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। सो आपकी fz equals to cz। नाउ दिस मैपिंग इज कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल क्यों है, बिकॉज यदि आप fz का यदि आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा, है ना, f प्राइम z equals to c मिलेगा, और c हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, a टाइम्स e की पावर eta phi के बराबर है। नाउ दिस मैप रोटेट्स एवरी पॉइंट बाय एंगल phi एंड इज कैरिड बाय a, बिकॉज़ जो हमारे पास जो c मल्टीप्लाई में है
इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे थोड़ा उसको स्केल कर देगा और जो इसका एंगल है उससे उसको रोटेट कर देगा। तो हमारे पास जो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन जो मैपिंग थी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कन्फॉर्मल मैपिंग। बिकॉज हमारे पास में आप देख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू सी जेड, हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दिस इज अवर लीनियर फंक्शन विथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। एफ जेड इक्वल टू जेड हमारे पास में पता ही हमको एनालिटिक फंक्शन होता है, बिकॉज दैट फंक्शन सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशंस। कोई भी फंक्शन है एनालिटिक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीआर इक्वेशन उसकी चेक करेंगे और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके मिल रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कंटीन्यूअस होनी चाहिए। तो एफ जेड इक्वल टू सी जेड की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू सी जेड है, दैट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशंस and the partial derivatives also continuous. Therefore, this f z equals to c z is an analytic function, and also f prime z equals to c, which is not equals to 0. Therefore, this is our conformal mapping, and this is our rotation and magnification transformation. Second one, consider the map w equals to e की power z. First of all, e की power z आपका analytic function है कि नहीं है? ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, e की पावर z इज एन एनालिटिक फंक्शन। किया था या नहीं किया था आप लोगों ने? e z को क्या लिखा था आपने, e की पावर x टाइम्स e की पावर आईटा y। इट मींस आपने लिखा था e की पावर x ब्रैकेट में लिख cos ऑफ y प्लस आईटा sin y। यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे सीआर इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आप निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो मिलेंगे आपको एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में मिलेंगे, एंड वी नो दैट एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। therefore w equals to e की पावर z is analytic in the complex plane. Also its derivative at the point z naught is e की पावर z, again exponential function, which is not equal to 0 for each z। ये z के लिए कभी भी 0 नहीं होगा except minus infinity जो भी होगा। Thus it is a conformal map throughout the entire z plane। Next one is the function f z equals to z square plus z plus 1 is conformal। आपकी ये conformal है, आप चेक कर सकते हैं because this is our linear function, polynomial के फॉर्म में है, so this is our analytic function। Now this define the conformal mapping except the point z equals to minus 1/2, because इसका यदि आप डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव आपको कितना मिलेगा, 2z plus 1 which is equals to 0 gives z equals to minus half। So this function define a conformal mapping except z equals to minus 1/2, and this point minus 1/2 is known as the critical point of the function f z। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे को चेक करनी है। Next one is the critical point। If f is analytic at z naught and f and z naught equals to 0, then the point z naught is called a critical point of f। It means जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन जाता है, that point is known as the critical point। For example, f z equals to sin z, and we know that this is our analytic function everywhere and hence represent a conformal mapping except at the critical points। इसके critical points आपको क्या मिलेंगे sin z के? इसके critical points निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। sin z का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos z बनेगा। यदि आप cos z को 0 के बराबर पुट करते हैं तो z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी 1 + 1 टाइम्स π/2। Yes, sir. Yes, sir. cos z equals to 0 का मतलब है z equals to 1 + 1 π/2। So these are the critical points of the function f z equals to sin z। It means our function f z equals to sin z defines a conformal mapping except these points, z equals to 1 + 1 π/2, where the derivative f and z vanishes। Now the behavior of an analytic function in the neighborhood of a critical points is given by the following theorem। Let f be analytic at z naught if f prime z naught f k minus 1 times z naught equals to 0। It means k minus 1 जो डेरिवेटिव मिल रहे हैं z naught के ऊपर, सारे के सारे डेरिवेटिव्स के यहाँ 0 हैं except kth derivative at z naught not equals to 0। Then the mapping w equals to fz magnifies the angle at the vertex z naught by a factor k। इट मींस हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक गिवन है, उसकी k माइनस डेरिवेटिव किसी पॉइंट z naught के ऊपर 0 है,
और उसका kth डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, तो हमारे पास जो w इक्वल टू एफ जेड है वो कन्फॉर्मल मैपिंग डिफाइन करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो एंगल है उसको मैग्नीफाइज कर देगा विद द फैक्टर k। फॉर एग्जांपल दिस वन, फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट स्क्वायर व्हिच इज गिवन बाय दिस डोमेन x plus iota y where x less than 1 and y is also less than 1 under the map w equals to fz equals to z square। इसकी जो इमेज आपको मिलेगी हम यदि वर्टिसेस की बात करें स्क्वायर की, तो इसकी वर्टिसेस क्या मिलेगी आपको 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। ये जो आपकी 4 वर्टिसेस होगी, तो इसमें नॉन जीरो वर्टिसेस कौन सी होंगी 1 0 1 1 एंड 0 1। यदि आप इसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप इसकी इमेज निकालते हैं तो आपकी जो इमेजेस मिलेगी इसकी z1 की इमेज कितनी मिलेगी w1, यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो z इक्वल टू 1 की इमेज आपको 1 मिल रही है। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y पुट कर दीजिए आप, इसकी इमेज आपको कितनी मिलेगी वो आयोटा मिलेगी। z इक्वल टू आप आयोटा पुट कर दीजिए इसमें, तो w इक्वल टू -1 मिलेगी। So these are the images of the vertices under this transformation w equals to z square, but f double prime 0 equals to 2। इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो आपको 2 मिलेगा which is not equals to 0। So the angle at the vertices z equals to 0 is magnified by the factor 2। ये यहाँ पे ट्रू है कि नहीं है, सोचिए इसमें थोड़ा क्या है। सर ये फॉल्स होगा सर। कैसे होगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 1 पे आपका जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे z इक्वल टू 1 है, इस पे थीटा का कितना है 0 है, ये ओवर द एक्स एक्सिस है ना पॉइंट। यस सर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा 1 π/4। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, थीटा इक्वल टू π/4 और z इक्वल टू आयोटा पे थीटा कितना मिलेगा आपको π/2 मिलेगा ना, ये सुनो। यस सर। तो इट मींस हमारे पास जो z पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट 0 पे एंगल पे, दूसरा पॉइंट π/4 पे है, तीसरा पॉइंट π/2 एंगल पे है। यदि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है z इक्वल टू 1 वो अगेन 0 पॉइंट पे 0 एंगल पे ही है, यहाँ पे भी 0 पे एंगल पे है, यहाँ पर भी 0 पे है। बट ये जो सेकंड पॉइंट है जिसका एंगल पहले कितना π/4 था, अभी कितना हो रहा है ये, इसकी जो इमेज बन रही है और वो आयोटा मिलता है। इट मींस इसकी जो इमेज का जो एंगल है दैट इज π/2। ये सुनो, यस सर, वो आयोटा आ रहा है ना, इट मींस यहाँ पे जो एंगल था इसका π/4 था, बट इस पॉइंट की जो इमेज आप निकाल रहे हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो कितनी मिल रही है आपको 2 आयोटा मिल रही है। इट मींस ओवर द y एक्सिस है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा π/2, सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल। यहाँ पे जो आयोटा आपको मिल रहा है इसकी इमेज आपको कितनी है -1 मिल रही है। इट मींस ओवर द नेगेटिव एक्सिस जो एंगल कितना बन जाएगा पाई बन जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना π/2 था, यहाँ पे एंगल आपको कितना मिल रहा है पाई मिल रहा है। सुनो, यस सर, भाई w इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या है, ओवर द नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका एंगल कितना हो जाएगा पाई बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई हमारे पास में 3 वर्टिसेस हमने लिख ली, जो हमारा स्क्वायर है उसकी 3 नॉन जीरो वर्टिसेस हमने लिख ली। फर्स्ट पॉइंट है जिसका एंगल कितना है 0 एंगल पे है, तो इसकी इमेज आपको मिल जाएगी वो ओवर दी पॉजिटिव u एक्सिस पे मिल रही है विद एंगल 0। यहाँ पे जो पॉइंट है जिसका एंगल कितना है π/4 था, इसकी इमेज हमको मिल रही है ओवर दी v एक्सिस विद एंगल π/2। यहाँ पे जो पॉइंट था ओवर दी y एक्सिस था विद एंगल π/2, इसकी इमेज हमको मिल रही है ओवर द नेगेटिव u एक्सिस विद एंगल पाई। तो इट मींस हमारा जो एंगल्स हैं उनका रोटेशन कितने टाइम मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। और यदि हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में देखेंगे कि fz इक्वल्स टू z स्क्वायर है, तो हमारे पास में जो है इसमें जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस मिलेगी इस डोमेन के अंदर, हमारे पास जो स्क्वायर है
हमने अभी तक तो इसकी वर्टिसेस की इमेज देखी है। इस यदि हम स्क्वायर को इसके वर्टिकल और स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, जो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स मिलेगी, उसकी जो इमेजेस मिलेंगी हमको एक पैराबोलास मिलेंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस सर्किल के अंदर जो भी हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे, उसकी जो इमेजेस हमको मिलेगी वो पैराबोला की शेप में मिलने वाली है हमको, ठीक है। Let us see this example. So that the mapping W equals to Fz equals to cos Z is conformal at the points Z equals to iota 1 and pi plus iota, and determine the angle of rotation. Conformal चेक करना आपको, Fz equals to cos Z. Conformal की कंडीशन क्या है? हेलो, f dash z is not equal to 0. तो इसका f dash z, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक फंक्शन। तो cos z फंक्शन है, अब cos z फंक्शन आपका एनालिटिक होता है बिकॉज़ हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल आर द एग्जांपल ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, और इनका जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एनालिटिक फंक्शंस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल cos z इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। cos z का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? माइनस साइन जेड मिलेगा, माइनस साइन जेड मिलेगा। अब हमको चेक करना है कि दिस फंक्शन डिफाइन है कन्फॉर्मल एट द पॉइंट आयोटा 1 इन पाई प्लस आयोटा। तो साइन जेड है, साइन जेड की वैल्यू आयोटा पे कितनी मिलने वाली है आपको? यहाँ पे माइनस साइन जेड आपका डेरिवेटिव है, माइनस साइन जेड एट द पॉइंट आयोटा कितना मिलेगा? -1। इट मींस नॉन जीरो मिलने वाली है आपको, जीरो तो नहीं होगा आयोटा के ऊपर? नो सर। 1 पे भी जीरो नहीं होगा और पाई प्लस आयोटा पे भी जीरो नहीं होगा। इट मींस आपको जो भी माइनस साइन जेड मिलेगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट आयोटा 1 इन पाई प्लस आयोटा। सो देयरफॉर योर फंक्शन w इक्वल्स टू cos ऑफ z डिफाइंस ए कन्फॉर्मल मैपिंग एट द पॉइंट आयोटा 1 इन पाई प्लस आयोटा। फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि डेरिवेटिव जो आप निकालेंगे वो इस पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं बनेगा। Now next point is determine the angle of rotation. It means argument of f prime z at the given points. Arguments आप निकाल सकते हैं। See this one. f prime z equals to minus sin z. So w equals to cos z is conformal at all points except the point z equals to n pi. Because जहाँ पे ये डेरिवेटिव जीरो बनेगा, sin z कहाँ पे जीरो बनेगा? n pi के ऊपर जीरो बनेगा। Where n is an integer number. It means पाई पे जीरो बनेगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, पॉजिटिव की बात करें ना। Therefore f prime iota की वैल्यू कितने मिल जाएगा? माइनस ऑफ साइन आयोटा व्हिच इज माइनस आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 1। f prime 1 इट मींस माइनस साइन 1 एंड f prime पाई प्लस आयोटा इट मींस माइनस साइन ऑफ पाई प्लस आयोटा व्हिच इज आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 1। तो ये हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है। Thus the respective angles of rotations are given by argument of f prime iota. It means imaginary part है, real part zero मिल रहा है, with negative है, imaginary part है। It means over the negative y axis है, तो एंगल कितना बन जाएगा आपका? -π/2। यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, बिकॉज इसका रियल पार्ट जीरो है, सो एंगल इज पाई। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है, बिकॉज रियल पार्ट क्या है? जीरो है, सो देयरफॉर एंगल इज π/2। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द डेरिवेटिव्स एट द पॉइंट आयोटा 1 एंड पाई प्लस आयोटा। ठीक है, एनी डाउट? So let us summarize. Sufficient condition for w equals to fz to represent a conformal mapping. Let w equals to fz be an analytic function of z in the region D of the z plane, and let f prime z not equal to 0 inside D. Then the mapping w equals to fz is conformal at the point of D. It means जब भी आपके पास में w equals to fz given है, तो उसकी sufficient condition क्या है कि वो conformal mapping define करेगी? First of all, your function must be an analytic function, and the derivative not equals to 0. ये हमारी क्या है? Sufficient condition है for the conformal mapping. Second case है necessary condition for w equals to fz to represent a conformal mapping.
if the mapping w equals to fz is a conformal, then the function fz is analytic function of z. यदि आपकी मैपिंग कन्फॉर्मल में है, इट मींस आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए. सो एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट में क्या है, एनालिटिक के साथ में डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. नेसेसरी में क्या है कि यदि आपकी मैपिंग कन्फॉर्मल है तो आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो तो एनालिटिक होगा ही होगा. सो दिस इज अवर समराइजेशन ऑफ द कन्फॉर्मल मैपिंग. कभी भी आपके पास में फंक्शन fz गिवन है तो चेक करना है कि आपका फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग डिफाइन करता है. क्या करना होगा, पहले फर्स्ट चेक योर फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, एंड सेकंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव. If derivative is not equal to 0, it means your function is defined conformal mapping. ठीक है. So thank you for today. We'll continue in the next lecture. Thank you, sir.